Hi everybody, welcome back to my YouTube channel. This is Gauri Guglani and I am currently working as an analytics consultant with Entity Data. In this video, I'm going to specifically talk about how you can get more calls from Naukri, how you can make it to the interview rounds, and what process you need to follow to exactly get those things. Now, as you know, in the job hunting journey, सबसे important चीज़ है हमारे लिए LinkedIn, Naukri, and all those platforms. Specifically, people in their early career age and who are just starting out, Naukri can be really beneficial for them. In my experience, when I was graduating in 2021, I mainly got job through LinkedIn. Like Deloitte was through LinkedIn, and मुझे और एक दो offers थे वो LinkedIn से थे as a fresher because वहाँ पे ज़्यादा freshers की opportunity posted थी. And but I was using Naukri also at that time. But I didn't know कि कैसे नौकरी को to use it maximum capacity में या capability में कि हम उसका efficiently use कर सकें to get more calls and how can we make it to interview rounds from Naukri itself. तो during my undergrad, like after I completed my graduation, did not explore much towards Naukri. I used to just keep applying just to see कि whether I'll get calls या कैसा होता है process. But now after 3 years, when I was seriously looking for switch, तब I decided to focus more on Naukri and LinkedIn of course. But yeah, because I've heard from my friends and seniors also कि Naukri से you get more calls and you don't have to do much of hard work there. You will get directly calls from recruiters, which is a great thing कि आप प्रोफाइल अपनी कुछ स्टेप्स प्रोसेस फॉलो करके अपडेट कर रहे हो एंड यू आर गेटिंग गुड कॉल्स डायरेक्टली फ्रॉम द रिक्रूटर्स इटसेल्फ. तो आई थॉट लेट्स गिव इट अ ट्राई because I did not use Naukri to its best of it, like 100%. I did not use it. So I went on YouTube. I was just scrolling through it and saw one YouTube video where the person said that the person used to get like 5 to 6 calls per day from Naukri. And through this method, the person used to give a lot of interviews. I realized that I have to explore Naukri properly so that even I get more calls. Well, I thought, how can one person get calls from Naukri, like directly from recruiters? But then when I saw the person's video, I followed those steps and you won't believe, मुझे भी really 5 to 6 calls या on an average 3 to 4 calls तो आ ही जाते थे. तो if I may have to tell you, I got call from EY, made it to interview, EY, PwC, KPMG, Cape Gemini, Cognizant, and of course Entity Data where I'm currently working, plus companies like Amazon, BT, British Telecom, which is ऐसी अच्छी companies से I got many calls. And I made it to interview rounds also. Like उसकी story अलग है कि what happened there next. But yeah, so Naukri is very powerful for people in like from 0 to 4 to 5 years of experience के ये एज ग्रुप के लिए, इस रेंज के एक्सपीरियंस के लिए नौकरी इज़ पावरफुल प्रोफाइल. नाउ मैं आपको ऑनेस्टली बता दूँ कि मैंने क्या किया जिससे मुझे इतने कॉल्स आए. आप भी वो एग्जैक्ट प्रोसेस फॉलो कर सकते हो सो दैट यू ऑल्सो गेट दीज मेनी कॉल्स एंड आपको एटलीस्ट इंटरव्यू देने का प्रैक्टिस हो. यू गेट टू लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स एंड ऐसा नहीं कि फर्स्ट कॉल में यू विल गेट सिलेक्टेड. यू विल learn and unlearn and you will understand कि okay, here I'm making mistakes. For my next interview I have to prepare for these things, right? तो starting off, सबसे पहला part, complete your profile पूरी 100%, right from your resume heading, profile section, descriptions, your project summary, internships या work experience क्या था आपका, all the certifications, everything. like वहाँ पे एक option होता है कि your profile is 100% completed. check that कि वहाँ पे 100% आ रहा है कि नहीं. until and unless it's 100%, keep updating A to Z whatever. It will give you suggestions कि आपका ये part incomplete है, completed. And this once this is done, profile picture should be professional, should not be like a selfie लगाई हुई अपनी. Proper professional picture which looks like this person has a genuine profile. And then now second part which is very important is the keyword. अब आपने पूरी प्रोफाइल तो भर दिया, आपने अच्छे से सब डिस्क्रिप्शन सब कुछ लिख दिया. अब इसके बाद बारी है कि हम जो प्रोफाइल में डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं उसमें हमारे कीवर्ड्स क्या मेंशन है. सी ऑफकोर्स ये पूरे प्रोसेस में आप चैट जीपीटी की हेल्प लोगे, बट चैट जीपीटी को भी क्या पूछना है, कैसे पूछना है कि किस किसके डिस्क्रिप्शन चाहिए आपको, किस चीज़ के लिए. जेनरिक लिखोगे कोई फ़ायदा नहीं है. बेटर कि एग्जैक्ट जिसके लिए जॉब ढूंढ रहे हो. एग्जाम्पल, इफ आई एम लुकिंग फॉर मशीन लर्निंग इंजीनियर, तो आई विल मेंशन सच स्किल्स एंड सच कीवर्ड्स इन माई प्रोफाइल जो मशीन लर्निंग इंजीनियर से रिलेटेड हो. एग्जाम्पल, स्टैटिस्टिक्स, मॉडलिंग, डेटा मॉडलिंग एंड मॉडल इन प्रोडक्शन, ऑल दोस जो भी रिलेटेड है मशीन इंजीनियर से, पाइथन, मैटप्लॉटलिब, साइकिट लर्न, ऑल दोज थिंग्स. तो यू हैव टू मेंशन सब कुछ कीवर्ड के हिसाब से अच्छे से. क्यों? क्योंकि जब रिक्रूटर सर्च करेगा, रिक्रूटर में भी कोई कीवर्ड सर्च करेगा, राइट. वो ये नहीं सर्च करेगा कि आपका नाम तो उसको पता नहीं है, तो वो कीवर्ड के थ्रू फिल्टर आउट करेगा. तो फॉर दैट पर्पज ऑल्सो जब कीवर्ड्स अच्छे से मेंशन होंगे तो आपकी प्रोफाइल की विजिबिलिटी और बढ़ेगी एंड योर प्रोफाइल विल बी ऑन मोर टॉप. Example, I was looking for specifically data analyst jobs.
तो एनालिटिक्स डोमेन में डेटा क्लीनिंग, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, डेटा विजुअलाइजेशन, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स, ये सब चीज़ें के अच्छे कीवर्ड्स यू हैव टू मेंशन योर प्रोफाइल। ओवर भरना भी नहीं है, बट स्किल्स की जगह स्किल्स प्रॉपर मेंशन करने हैं। प्रोफाइल के समरी में क्या आपने 3 साल का एक्सपीरियंस है, क्या काम किया एग्जैक्टली, क्या आपने इम्पैक्ट क्रिएट किया या आपका एग्जैक्ट वर्क क्या था वो आपने मेंशन कर दिया। प्रोजेक्ट्स आपने सी, अगर आपके पर्सनल प्रोजेक्ट इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है तो अपने ऑफिस के प्रोजेक्ट्स मेंशन कर लो विदाउट मेंशनिंग क्लाइंट या जो भी आपके प्राइवेसी वो गाइडलाइंस है, बट वो अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स मेंशन कर लो। उसके बाद यू हैव सर्टिफिकेशंस। अब हमारे पास एक सर्टिफिकेट तो होंगे, जो भी है सर्टिफिकेशन जो आपकी जिस फील्ड में जॉब ढूंढ रहे हो उससे रिलेटेड कोई सर्टिफिकेशन है तो मेंशन दैट कि आई हैव द सर्टिफिकेशन एंड मैंने ये कब किया एंड क्यों किया, लाइक इस सर्टिफिकेशन करने के बाद व्हाट डिड आई लर्न, लाइक व्हाट स्किल्स एडेड इन माय बकेट, एडेड प्रॉपर्ली। सो नाउ व्हेन यू मेंशन ऑल योर कीवर्ड टुगेदर, सब प्रॉपर्ली मेंशन है अच्छे से, सो दैट रिक्रूटर व्हेन सर्च सम स्पेसिफिक कीवर्ड्स आपकी प्रोफाइल ऊपर आनी चाहिए विच मैचेस विद द रिक्रूटर सर्च एंड योर सर्च, तो दोनों का मैच होना चाहिए सो दैट यू विल गेट अ मैसेज कि वी आर इंटरेस्टेड इन योर प्रोफाइल एंड ऑल। तो ये थे 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें। फर्स्ट, कंप्लीट योर प्रोफाइल 100%। सेकंड, एग्जैक्ट कीवर्ड्स इंक्लूड करो अपने प्रोफाइल में जिसके लिए आप जॉब ढूंढ रहे हो। नाउ कम्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, थर्ड पार्ट, विच इज़ अपडेट योर प्रोफाइल एवरी डे। नाउ इसका लॉजिक ये है कि एवरी डे व्हेन रिक्रूटर्स कम टू नौकरी दे लुक फॉर पीपल, आपकी प्रोफाइल ऊपर आने के लिए यू नीड टू शो दैट आज ही मैंने प्रोफाइल अपडेट की, इट्स नॉट लाइक इट्स बीन वीक्स, आई एम नॉट लुकिंग फॉर जॉब। पीपल हु आर हंटिंग फॉर जॉब्स दे कीप ऑन अपडेटिंग द प्रोफाइल डेली। तो मेरा क्या शेड्यूल था, सो आई यूज टू हैव माई डिलॉयट मीटिंग एवरी डे 8 AM। आई यूज टू कम अराउंड लाइक आई यूज टू वेक अप अराउंड 7:30, अपडेट माई प्रोफाइल सबसे पहले उठ के, नॉट एक्जैक्टली 7:30 बट अराउंड 8 o'clock आई यूज टू अपडेट, लैपटॉप खोल के सीधा फर्स्ट थिंग आई शुड डू वाज ओपन नौकरी, अपडेट माई प्रोफाइल। प्रोफाइल अपडेट में व्हाट आई मीन इज, मुझे ना पहले डिलॉयट में किसी सीनियर ने बताया था कि एटलीस्ट जस्ट add a dot and leave it, your profile will be updated. That now I did not get that what exactly he mean by adding a dot and your profile will be updated. Later on, when I explored much and heard other people, I understood that updating profile means just showing that today you were last seen on Naukri. So वहाँ पे एक सेक्शन भी है, लास्ट प्रोफाइल अपडेटेड, उसमें आपका टुडे आना चाहिए। एवरी डे वेकअप एंड चेक इफ इट्स टुडे then good, otherwise updated. Now updated, I used to delete the resume and add again, simple process. Or you can do delete your name and add your name again, like same name. See, इन सब छोटी छोटी चीज़ों से ना your profile gets updated and it shows कि your profile was last updated today. इससे it feels कि the person who's looking for job is active and is looking currently also for jobs. तो still I have stopped doing it now because I have a job now. बट बिकॉज मैंने वो उस टाइम पे इतना अपडेट किया, एवरी डे टू अपडेट कि स्टिल आई एम गेटिंग कॉल्स कभी कभी एंड आई एम स्टिल गेटिंग द विजिबिलिटी कि दिस रिक्रूटर सॉ योर प्रोफाइल, दिस रिक्रूटर इज़ ट्राइंग टू इन्वाइट यू फॉर जॉब। तो ये बहुत आता है। सो ये सब चीज़ें अपडेट करने से 2 चीज़ें बहुत इंपैक्ट होंगी। एक, डायरेक्ट कॉल्स आएंगे आपको रिक्रूटर से। दूसरा, रिक्रूटर्स विल सेंड देयर जॉब्स डायरेक्टली टू यू लाइक अ मैसेज इन नौकरी, हैव दिस मैसेज ऑप्शन टू अप्लाई फॉर इट. Like if they see that your skills and your keywords match with what they are searching for, if they match, they'll invite you to apply for a job. When you apply for that job, he will see your resume and then he will check ki, okay, whether this person is really eligible or really match with the current role which we are hiring for ki nahi. So it was huge impact in my job hunting journey. And yeah, आपके प्रोफाइल में भी, आपके जॉब हंटिंग जर्नी में भी एक ईजी मेथड हो सकता है. इट्स ईजी आफ्टरवर्ड्स, बट आई वुड सजेस्ट एक दिन निकालो, स्पेंड प्रॉपर 1 day ऑन नौकरी ओनली, प्रॉपर A to Z अपडेट करो, टेक द हेल्प फ्रॉम ChatGPT, इट विल बी रियली ईजी एंड थोड़ा क्विक हो जाएगा काम. लेकिन मेक श्योर यू आर नॉट एडिंग एनीथिंग जो आपने कुछ किया भी नहीं है काम, एंड देन आप एक्सपेक्ट करो कि मुझे इंटरव्यूज़ नहीं आ रहे हैं, आई एम फीलिंग द इंटरव्यूज़. जेन्युइनली फिल ऑल द डिटेल्स विच यू आर कॉन्फिडेंट ऑफ एंड एड प्रॉपर कीवर्ड्स जिससे आप जिससे रिलेटेड प्रोफाइल ढूंढ रहे हो. ऑफकोर्स टेक आउट अ डे कम्प्लीटली, अपने अपने वर्क एक्सपीरियंस, अपना क्या काम किया जॉब पर, आपने जो पुराना एक्सपीरियंस है आपका, आपने जो सर्टिफिकेशंस किए उससे आपने क्या क्या सीखा, क्या स्किल्स ऐड किए, एंड देन समरी. एंड देन सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज़ है जो प्रोफाइल का हेडिंग है. एग्जाम्पल, करंटली आई विल राइट माई प्रोफाइल एज एनालिटिक्स कंसल्टेंट एट एंटिटी डेटा. So in such a way, people who are looking for a consultant role, they'll search with keyword consultant, मेरी प्रोफाइल आगे आएगी. Same way, if you're looking for data engineer, machine learning engineer, write like machine learning engineer at Deloitte, machine learning engineer at XYZ या जो भी है. तो आई वुड सजेस्ट, सपोज मैं अभी डेटा एनालिस्ट हूँ एंड मैं मशीन लर्निंग इंजीनियर में जॉब ढूंढ रही हूँ, तो बेटर है कि नाउ राइट योर हेडिंग एज मशीन लर्निंग इंजीनियर एट योर प्रायर कंपनी, डोंट राइट डेटा एनालिस्ट, बिकॉज इससे क्या है, योर टारगेट इज मशीन लर्निंग इंजीनियर रोल. बट अगर आप डेटा एनालिस्ट डाल दोगे तो आपको फिर डेटा एनालिस्ट से रिलेटेड ही कीवर्ड्स आएंगे, राइट, आपको कॉल्स आएंगे. तो ट्राई टू राइट सच कीवर्ड्स जो आपकी नेक्स्ट हंट से मैच हो. आई होप दिस वीडियो वॉज इंसाइटफुल एंड यू हैव लर्नड हाउ टू यूज नौकरी efficiently. So that was it from the video. I hope you liked it and I hope you will learn a lot of things from this and you will implement it in your job hunting journey.
And if your friends are on the same path, share this video with them also so that they can also implement same techniques. Let me know in the comment section, how is your process going on? How is your job hunting going on? Are you facing any difficulties? Let's talk and let's discuss it out. Thank you very much. See you in the next video. Bye.